to the channel. We are here with the new video where we going to discuss about the tables and frames, and in the web development, how to create the tables and the frames. We are going to discuss how to structure it, how to organize the content. We are going to interact with and personalize into the manner. And tables is a which where we consist of rows and columns, and the tables are used to create the it has a subtags td tag, tr tag, and th tag. So th tag is used for the heading, it makes the heading more bold. Okay, and the tr tag is used for the table row, and we can say the td tag is used for the table data. So in the tables in html, we are here to discuss about the table structured, how the basic structured. Table tag consists of table is a main tag, style is its attribute, and further added its attribute, and t head it's written because the table head, and it consists of heading and table. It close the t head tag and body open, and it consists of the data which we have to provide in the table. Okay, so it is these are the subtags of it. It is a basic structured how to create a table in the html. So another part is basic table structure, which I have tell you before. We can write in the both ways. If we want to use a t head tag, or if we do not want to use a t head tag, it's our choice. So if you want to use, you can use, you can follow this also, this process also, and that process also. It's our choice. Okay, so in this it is the data can be anything. It can be for the survey, it can for anything which it's our wish. Okay, so other elements like tr tag, td tag, and the th I have tell you, these are rows, cells, and t for the column we do not have, because if we tell that it is a rows, and it will be, take automatically take the columns itself. So that's why this is the basic structure, and further we are going to discuss about more over it. And these are the types. You may create the nodes side by side. The table is the main, it contains the table, and it is an example that that यू क्लैरिफाई इट, कैसे आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, और टी को क्रिएट करते हैं, टी को क्रिएट करते हैं, टेबल रो को कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है. अगर आपको इससे क्लियर नहीं हो रहा, आपको दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी चूज़ आउट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स प्रोसीड द फर्दर. मैंने आपको बताया यहाँ पे कि टेबल रो कैसे यूज़ करते हैं, एंड टेबल हेडिंग कैसे यूज. हेडिंग टैग हम कोई और में भी लगा सकते हैं, जस्ट जिसको हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है ना, मोर एम्फोसिस करना है, तो हम वहाँ पे टी टैग यूज़ करते हैं. ये आप नोट पैड पर ये सारा क्रिएट करके देखना अपने डिवाइसेस में, सो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. टेबल एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि हाउ टू डू, कैसे काम करते हैं उसको बताते हैं. बॉर्डर होता है, बॉर्डर में आप विड्थ बताते हो कि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो कि इसका बॉर्डर ये 1 रखना है, इसका बॉर्डर फर्दर 10 रखना है, बॉर्डर थिक कितना रखना है, वो अब ये बॉर्डर एट्रीब्यूट से हमें पता लगता है. ये CSS स्टाइल में भी यूज़ होता है. सेल पैडिंग वो होता है जिसमें स्पेस कंटेन करता है, भी कंटेंट में और सेल में कितनी स्पेस हमने देनी है. ओके, सेल स्पेसिंग क्या होती है कि स्पेस कितनी देनी है. दो सेल है, उनकी दोनों में कितनी स्पेस हमने इनको देनी है, वो सेल स्पेसिंग बताता है. ओके, सो सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग आर द पार्ट ऑफ द टेबल टैग. अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमने 2 सेल्स में स्पेस चाहिए, तो वो सेल स्पेसिंग से होगा. अगर हमको सेल पैडिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जब सेल कंटेंट और सेल बॉर्डर में दोनों में स्पेस चाहिए, तो ओके कितनी स्पेस चाहिए, 10 हम न्यूमेरिक वैल्यू दे के उसको स्पेस को दे सकते हैं. जैसे टेबल कंटेंट हेयर लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स है. सिंटेक्स आप नोट्स में साइड बाय साइड क्रिएट कर सकते हैं. आप साइड बाय साइड नोट्स क्रिएट बना सकते हैं, जैसे आपको इजी हो जाए लर्न करने के लिए. ओके, स्पेस क्यों कंटेन करते हैं, क्योंकि हमें रीडेबल मतलब रीड करने में आसानी हो, तब हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज़ करते हैं. मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये हमको लेके आता है टेबल को. ठीक है, और हम अब फर्दर पढ़ते हैं कि
सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स किसके हैं, टेबल के हैं। हम मर्जिंग द सेल्स, ये है मर्ज करता है दो सेल्स को, जैसे स्टूडेंट एक सेल में लिखा और डिटेल एक सेल में लिखा है, तो वो दोनों को मैंने एक ही सेल में लेके आना, तो मैं मर्ज सेल लिखूँगी। अगर मैंने कॉलम वाइज मर्ज, जैसे ऊपर लिखा स्टूडेंट, फिर नीचे वाले रो में लिखा है दैट डिटेल, तो मैं कोट्स पेन यूज़ करूँगी। अगर मैंने इधर वाली साइड लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड लिखा है डिटेल्स, सो वहाँ पे मैं रोज पेन यूज़ करूँगी। इट्स डिपेंड ऑन मी, इट्स डिपेंड ऑन द डिटेल्स, कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड हुई है। सो उसमें उस दोनों सेल को एक ही सेल में मर्ज करने के लिए कोल्स पेन्स एंड रोज पेन्स यूज़ करते हैं। जैसे ये TH का सब वी कैन से ये TH का एट्रीब्यूट है, दोनों चीज़ें, ठीक है। ये दोनों ही TH मतलब हेडिंग टैग में यूज़ किए जाते हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये इसका सिंटेक्स है, दोनों का सिंटेक्स है। सो आप इनको अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे कि आप अपने कॉलेज जाते होगे, ओके, या फिर आपको PCs होंगे, आप वहाँ पे ट्राई करके देखोगे तो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, जैसे ये थ्योरी दी हुई है, थ्योरी को भी आप बहुत ही बारीकी से मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़े। जो भी मैं आपको बता रही हूँ जस्ट उसको अपने दिमाग में फिट करने, माइंड ओपन करके आप बैठिए और वीडियो को सुनिए। आपको पूरा ही चैप्टर, पूरा ही थिंग, आपको HTML कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, सब चीज़ मैं बता रही हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएंगी। आप बस ध्यान से सुनिए। जैसे आपके 20 मिनट्स ना आपको सारा ही चैप्टर, आपको सारी इसके रिलेटेड डिटेल्स, आपको सारी HTML रिलेटेड डिटेल्स आपको दे देंगे। सो ये पार्ट 3 है वीडियो का। पार्ट 2 पार्ट 1 पहले दियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा प्लीज़ जाके वो देखो। सो अगर हम अगला है एग्ज़ाम्पल, ये है एग्ज़ाम्पल ऑफ अ टेबल, कैसे टेबल को बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट के साथ, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें बॉर्डर कैसे लगाते हैं, सेल पैडिंग कैसे लगाते हैं, सेल स्पेसिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है। और उसमें TR टैग ऑन करके हेडिंग कैसे देनी है, TR टैग क्लोज करनी है, TR टैग फिर ओपन करना है, ठीक है। उसमें फर्दर उसकी डिटेल देनी है, जो भी हमने नेम दिया, नेम कुछ भी दे दो, एज दिया 23 फॉर एग्जांपल, CD कोई भी दे दो, ठीक है। ये मतलब आपको एग्जांपल दी हुई है कि कैसे एट्रीब्यूट के साथ आपको टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की वैल्यू आप बढ़ा के देखना, मतलब आपको नोटपैड में जब लिखोगे तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ा के देखना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होएंगी, ठीक है। वो आपको स्पेस, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंसेस बताएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल है, ये आपको लिखनी होगी, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो इसके रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर प्रोग्राम लिखोगे तभी आपको उसके रिलेटेड मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि TD में आपको रोज पेन यूज़ किया हुआ है, आप TH पे भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके ये सब टैग्स है, ठीक है। सब एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं हम, सब टैग्स नहीं है, ये एट्रीब्यूट्स है उसके, ठीक है। ये जो ये टेबल बना हुआ है ये आपको क्लियर करता है कि इसका बॉर्डर थिन होता है, ठीक है, तो और इसकी रोज़ एंड कॉलम वैसे क्रिएट होती हैं, ये टेबल आपको ये बता रहा है, ओके। सो टेबल टैग ऑन करके टेबल टैग क्लोज भी कर सकते हो आप। देन वी हैव TD टैग देख रहे हो आप कि सारा डाटा कंसिस्ट किया हुआ है, आपको ये रोज़ में कैसे डाटा को देगा ये आपको बताता है, ठीक है। आप इसमें बहुत ही मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा आपको फिल आउट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ओके। सो ये एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में देनी है, ये आपको मार्क्स देगी, ओके। सो अनदर थिंग आई वांट टू डिस्कस ओवर हेयर कि आप फर्दर पढ़ेंगे कि वर्किंग विद फ्रेम्स कैसे क्रिएट करते हैं हम HTML में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि एक स्क्रीन है मॉनिटर की और उसको मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं, जैसे 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने उसमें लगाने हैं। एक है यूट्यूब वीडियो मैंने इसको चलानी है, एक है मैप, इंटरेक्टिव मैप दिखाना है, सेकंड फ्रेम एंड थर्ड फ्रेम में मैंने क्या बताना है कि कोई वेबसाइट है उसका कंटेंट मुझे देखना।
तो मैं उस तीनों को एक ही वेब पेज में, सिंगल वेब पेज में लाने के लिए फ्रेम्स का यूज़ करूँगी। आई फ्रेम क्या है, उसका मेन टैग है। आई फ्रेम क्या है, करंट वेब पेज में बहुत ही अलग अलग अनदर वेब पेजेस की लोकेशन सोर्स लेके आता है एक ही फ्रेम में। सो इसमें भी एग्जांपल दी हुई है कि आप अबेंड कर सकते हो, मतलब अटैच कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस में से अबेंड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो यूट्यूब वीडियो को, अट्रैक्टिव मैप्स को डिस्प्ले करना है आपको कोई भी अनदर कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। सो ये किसके हेल्प से कर सकते हो आप, फ्रेम्स की हेल्प से कर सकते हो आप इसको। ओके, सो फर्दर मैंने आपको बताना है कि इसका एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है आई फ्रेम का, जिसमें हम सोर्स का यूज़ करते हैं। सोर्स का यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि सोर्स में हम सोर्स क्या है, उसका आई फ्रेम का एट्रीब्यूट है। ओके, ये फ्रेम्स किस किन चीज़ों में, जैसे हमने तीन काम एक इकट्ठे करने हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें देखनी है, तीनों चीज़ें देख के एनालाइज करना है डाटा को। एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं, कोई भी चीज़ को तीन डॉक्यूमेंट है, तीन अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स है और मुझे इसको सिंगल डॉक्यूमेंट एक ही फ्रेम में लेके आना है, तो मैं उन तीनों के एक ही फ्रेम में लाके उस चीज़ डाटा को एनालाइज कर देती हूँ। तो वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स हो सकता है। ओके, दिस इज़ होल अबाउट द फ्रेम। सो फॉर कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट को और वेब पेजेस को इनसाइड द वेबसाइट बेंड करना है, सो हम उसका फ्रेम्स का, तब उनमें हम फ्रेम्स का यूज़ करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में आई फ्रेम के भी अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई फ्रेम क्या है, एक मेन एट्रीब्यूट है। किसका मेन एट्रीब्यूट है, फ्रेम्स का मेन एट्रीब्यूट है। सिंगल वेब पेजेस में हमें जब बैंड करना होता है अनदर वेब पेजेस को करंट वेब पेज में, सो वहाँ पे हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है ऑफ अ फ्रेम्स इन द HTML। ओके, सो फर्दर हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किस में, फ्रेम्स में। सो अब आ रहा है फ्रेम्स। सो फ्रेम्स की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं उसके हाइट, विड्थ, ठीक है, सोर्स, फ्रेम बॉर्डर, ये सारे उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ये पहले सिंटेक्स है, सिंटेक्स में क्या दिया हुआ है, आई फ्रेम टैग ओपन हो रहा है। सो आप देख रहे हो कि टैग्स के एट्रीब्यूट को हम जब एंगुलर ब्रैकेट ऑन करते हैं, देन आई फ्रेम है, सोर्स है, देन इज इक्वल्स टू देन सोर्स का जो भी हम HTTP जो भी सोर्स लगा रहे हैं, देन विड्थ है, देन हाइट है, देन फ्रेम बॉर्डर है। देन हम देख रहे हैं कि एंगुलर ब्रैकेट जड़ा तब बंद हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान से रखना कि आई फ्रेम को एंगुलर ब्रैकेट ऑन करके ना साथ में बंद नहीं कर देना। अगर उसके एट्रीब्यूट्स हमने लगाने हैं तो पहले जो भी एट्रीब्यूट्स आएंगे देन उसके बाद उसका एंगुलर ब्रैकेट जो है बंद होगा। ये आपको बहुत ही ध्यान से रखना। अगर आप ये बंद नहीं कर, आप पहले ही ये बंद कर दोगे तो आपका जो है ये आई फ्रेम वाला टैग जो है नहीं वर्क करेगा नोटपैड पे। जब हम वेब ब्राउज़र में चला के देखेंगे तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, आपको एरर जनरेट करेगा, आपको फिर मुश्किल आएगी क्या एरर है ढूंढने में। ओके, सो पहले ही ये आपको देखना है कि आपको सिंटेक्स में ही आई फ्रेम जब यूज़ करना है एंगुलर ब्रैकेट तब बंद नहीं करना। ओके, सो अब आ रहा है अलो फुल स्क्रीन। सो ये पूरा स्क्रीन को अलो करता है, फुल सपोर्ट देता है। स्क्रीन मोड अगर हमने देना है तो स्क्रीन मोड फुल स्क्रीन का, अगर आपको पूरी स्क्रीन में देना है तो ऑल फुल स्क्रीन आपको यूज़ करना है। इसके प्रोन्स एंड कॉन्स भी हैं, किसके आई फ्रेम के अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल कंटेंट को अबेंड कर सकते हैं, ये इसका क्या है एडवांटेज है। ओके, एडवांटेज में आप देख रहे हैं ये लो करता है कंटेंट को अटैच करने के लिए फ्रेम्स में, जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट हो सकती है, वीडियोज़ हो सकती है, मैप्स हो सकती है, ये डायरेक्टली अपने वेब पेजेस में बैंड करने के लिए। ये इसका क्या है कि एडवांटेजेस है। अगर कोई चीज़ है उसकी एक एडवांटेजेस है तो उसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है।
ठीक है, ये उसका क्या एडवांटेजेस है। देन हम फर्दर देखते हैं कि उसके मोर एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, जो कि हम फर्दर देखेंगे। तो पहले सिंटैक्स आएगा, ठीक है। देन उसके आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो पहले उसकी डेफिनेशन, देन उसका सिंटैक्स कि आई फ्रेम टैग ओपन होगा, देन कंटेंट, देन आई फ्रेम टैग क्लोज होगा, ओके। देन उसका अलग एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? आइसोलेशन, जो भी कंटेंट हम आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रेस्ट ऑफ पेज में हम आइसोलेट कर रहे हैं, बाकी जो भी पेज के अलावा जो भी हम कंटेंट को आइसोलेट करते हैं वो इंटरफेयर नहीं करता मेन पेज लेआउट फंक्शन। जो भी हम मेन पेज में कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता है, वो भी है इसकी एडवांटेजेस है। ये बहुत इजी टू यूज़ है। क्यों ये इजी टू? क्योंकि हम इसके जो भी एक्शन है, ठीक है, हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजीली। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें डिसएडवांटेज जो आ रहा है, परफॉर्मेंस इशू, SEO चैलेंज। सो परफॉर्मेंस इश्यूज़ में आ रहा है कि कई बार ये स्लो हो जाता है। परफॉर्मेंस का मेंटेन करने के लिए ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सो परफॉर्मेंस इशू ये क्रिएट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क क्या है? एक्स्ट्रा जब हम सेंसिटिव चीज़ें यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो अनरिलायबल सोर्स जो है इसमें इशू क्रिएट कर सकता है। सिक्योरिटी रिस्क है, किसी से अटैक भी हो सकता है। कई सारे अटैक्स हैं, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। सो अनदर पॉइंट इज़ कंबाइनिंग फॉर्म्स एंड टेबल्स। फॉर्म्स मैंने पार्ट 2 वीडियो में आपको डिस्कस किए थे आपके साथ। सो उनको एंड टेबल्स को क्रिएट कैसे करना है, हम क्रिएट क्यों करते हैं इसको? क्योंकि हमने सर्वे कंटेन करना होता है। जैसे सर्वे हमने लेना है तो वहाँ पे टेबल के फॉर्म्स में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर डाटा को प्रेजेंट करते हैं। अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी की तो वहाँ पे +2 +1 के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड थिंग्स, ओके, हमने अगर अब पूछनी होंगी तो वहाँ पे हम टेबल्स का यूज़ करेंगे फॉर्म्स के बीच में। सो उनको क्रिएट कैसे करना, उनकी बेसिक एग्जांपल जो है हम फर्दर देखेंगे। सो पहले तो आप देख सकते हो इसका डिफ़ाइन कैसे करना और इसको एग्जांपल में कैसे फॉर्म्स के बीच में टेबल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। सो ये है एग्जांपल ऑफ द फॉर्म्स एंड इनसाइड टेबल। ये इसकी हेडिंग है, ओके, ये प्रोग्राम की। देन इसमें देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हम पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं फॉर्म्स के बीच में तो हम सेंसिबल डाटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र से। सो फॉर्म्स वहाँ पे यूज़ करता है। देन उसके बाद फॉर्म्स में जो भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद हम टेबल बॉर्डर दे रहे हैं, सेल पैडिंग दे रहे हैं, टेबल रो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हेडिंग दे रहे हैं। देन टेबल हेडिंग में जो भी हमने कंटेंट, जो भी हमने वैल्यू देनी है तो हम उसकी हेल्प से दे सकते हैं। ऐसे ही आप ईमेल ID फिल आउट कर सकते हो, आप उनका जेंडर बता सकते हो। अगर जेंडर तो ऑन ऑफ बटन से यूज़ कर सकते हो तो उनको कहते हैं रेडियो बटन, ओके, जो मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो में बताया हुआ था। प्रीवियसली वीडियो में आपको इसमें डिटेल में हम रीड आउट किए थे फॉर्म्स को, ठीक है। सो उनको फॉर्म्स को वेबसाइट में कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म के साथ टेबल को कैसे क्रिएट करना है, वो हम इसमें देखते हैं। ये क्या है, एग्जांपल में हमने देखा कि इसमें इनपुट फील्ड रेडियो बटन था और चेक बॉक्स को प्लेस किया हुआ है इनसाइड अ टेबल फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अलाइनमेंट को हेल्प करता है। अगर हमने लेफ्ट अलाइनमेंट में टेबल चाहिए तो वो उसमें भी ये हेल्प करता है हमारी। सबमिट बटन रिक्वायर करता है, ओके। सबमिट बटन में वो हम देखते हैं कि सबमिट बटन देता है गेट में लेना और के पोस्ट में लेना। गेट क्या, जहाँ पे हम नॉन सेंसिबल डाटा को प्रोवाइड करते हैं, और पोस्ट क्या, जिसमें हम सेंसिबल डाटा मतलब सेंसिटिव डाटा को प्रोवाइड करते हैं। एंड गेट में हम नॉन सेंसिटिव, अगर वो किसी के मतलब कोई अटैक्स भी हो जाए तो वो सेंसिटिव डाटा नहीं था तो हमें कोई इशू नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है अगर, ठीक है। अगर वो सेंसिटिव डाटा देन ये इशू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज हम उसको एक सबमिट कर रहे हैं किसमें, गेट डाटा में। गेट मेथड जो है, गेट मेथड है कॉमन जो कि सब यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड जो है कभी कभी यूज़ होता है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव नहीं होती, कई इंफॉर्मेशन कॉमन भी होती हैं। जैसे कोई भी पर्सन की डिटेल, अगर डिटेल में ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें बताई गई हैं तो हम उसमें पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, ओके। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है।
अब हम देख रहे हैं, हमने आपको बताया कि कंबाइनिंग कैसे करनी है फॉर्म्स को टेबल के साथ। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर फॉर्म्स और टेबल का क्वेश्चन आ भी गया तो आप ये वाला पॉइंट ज़रूर लिख के आना, क्योंकि ये इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज़ ये आपको कोई भी मतलब ये जो भी है पीडीएफ में ही दिया हुआ, ठीक है, बुक्स में नहीं दिया, प्रोवाइड किया हुआ ये सेंसिटिव थिंग। ओके, देन इन डिटेल में नहीं प्रोवाइड किया तो होगा, पर डिटेल में प्रोवाइड नहीं किया होगा। इसके एडवांटेजेस भी है फॉर्म्स विद द टेबल की। क्या एडवांटेज है? ऑर्गेनाइज्ड करता है एंड विजुअल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स करता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो टेबल्स को हम क्रिएट करते हैं, फील्ड नीडली हम देते हैं उनको, जब जो कि हम हमारा काम आसान कर देते हैं, कि हमारा कौन सा यूज़र का काम आसान कर देते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ईजियर हो जाता है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या दिया हुआ। ओके, सो दिस वाज होल अबाउट द वीडियो। कंक्लूजन क्या मैंने आपको बताया कि HTML में हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स को कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स का वर्क क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। सो कंक्लूजन निकल के आता है कि ये ऑर्गेनाइज डाटा रोज एंड कॉलम्स में कैसे फिट करना है। ओके, सो दिस वाज होल अबाउट द वीडियो कि एक्सटर्नल कंटेंट कैसे फिल आउट करने हैं वीडियो में, HTML वेब पेजेस में कैसे आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगी। कि ये आपको इम्प्रूव करता है, जो भी ये चीज़ें है ना, आपको वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता, ठीक है। एक्सटर्नल कंटेंट को अपने वीडियोस और अदर वेब पेजेस में कैसे लेके आना है, तो ये साइट्स में ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। So if you like the video, please share with your friends and comment below if you want the PDF of this particular portion of which I have explained you. Okay, if you want to create the notes, you may comment me below. I will provide you this PDF in the description and with the link, and you may click and you may get the PDF of this video. This all content, it will make you easier to learn for the further things, and create your notes side by side, because it will be help you in the exam. Okay, so thank you so much.